shadow to my light. Did you feel us? Another star. Students of class 5th, welcome to your English class. So children, this is your part 2. In the part 1 I have explained the story, and now in part 2 we will discuss the exercises. Okay, so let's move to the exercises. See, get set is given. This one is done in the part 1 video. You can check it from there. Get set मैंने part 1 में कर दिया है, आप वहाँ से बना सकते हो देखकर. Okay, okay, now move to the exercises. Read and understand. Okay, in the question number 8 is given answer the following questions orally. These are the question answer which you have to answer it in orally. You don't have to write it in your notebook, but if you want then you can write it. It will be better. I think you should write it. Okay, so let me share you the answers in the written form. Come to the question number 1. What day was it and how was Tom planning to spend it? In the question number 1 it is asking that जो दिन था वो कैसा दिन था, कौन सा दिन था और कैसा था, है ना. एंड जो टॉम था उसने क्या प्लान किया था उस दिन, अपनी हॉलीडे पर क्या प्लान किया था, क्या करना था. देन योर आंसर विल बी इट वॉज अ वार्म ब्राइट सैटरडे एंड टॉम वॉज प्लानिंग टू गो स्विमिंग with his friends. Okay, this is your answer. Tom was planning to go swimming with his friends. Fine. Now move to the next one. In the question number 2, how did Tom feel about the job given to him by Aunt Polly? In the question number 2 it is asking जो टॉम था वो कैसा फील कर रहा था जब उसे आंट पोली ने जॉब दिया था वाइट वॉशिंग का, तो वो कैसा फील कर रहा था. देन योर आंसर विल बी Tom felt very sad and disappointed because his plan for swimming was spoilt. This is your second answer. One more thing children, if you want to write it then just pause the video आप pause कर लो, उसके बाद आप लिख सकते हो notebook में. Okay. Now come to the question number 3. Why did Ben beg Tom to let him whitewash the fence? In the question number 3 it is telling that जो बेन था, उसका जो फ्रेंड था, वो टॉम से क्यों बेक कर रहा था, क्यों बार बार मांग रहा था कि मुझे वाइट वॉश करने दो फेंस को. देन योर आंसर विल बी व्हेन टॉम टोल्ड बेन दैट वाइट वॉशिंग द फेंस वॉज नॉट वर्क बट ग्रेट फन फॉर हिम, दिस मेड बेन क्यूरियस एंड ही बेग्ड टॉम टू डू द whitewashing for him. So this is the third answer. Now move to the question number 4. Name 2 things that Tom owned by the time the fence was whitewashed. ऐसे 2 चीज़ों के नाम बताने आपको जो टॉम का हो रखा था जब वो वाइट वॉशिंग हो रही थी तब. तो ऐसा तो बहुत सारे थे बट आपको बस कोई 2 बतानी है. Then your answer will be you can write 12 marbles, a tin soldier और डॉग्स कॉलर, या फिर और भी थे, है ना, द 4 सेगमेंट्स ऑफ एन ऑरेंज. ओके, तो ये आप जो चाहो आप वो लिख सकते हो. फाइन, उसमें से कोई 2 लिख सकते हो. इट कैन वेरी, ये वेरी कर सकता है सबके आंसर, कोई कुछ लिख सकता है कोई कुछ लिख सकता है. ओके, मैंने यहाँ 2 बस लिखा है 12 मार्बल्स एंड अ टिन सोल्जर. फाइन. नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर बी. टिक द करेक्ट ऑप्शन. Children, here there are 4 options and you have to tick the correct one. Okay, among these 4 the one will be your correct one, so you have to tick it. Come to the first one. Tom had a holiday on which day Tom was having holiday? And it was Saturday, so your answer will be C. In the question number 2, Tom had a plan to go for a whitewash? No. Swim? Yes, it was swimming. Then C, match? No. D, picnic? No. Your answer will be option number B. Fine. Now move to the next one. Question number 3. Tom had to whitewash the what? Tom को क्या whitewash करनी थी? Railing? No. B, sailing? No. C, fence? Yes, it was fence. Then C will be your answer. So just tick it here. Okay, fine. D, no, it was not gate. Okay, now move to the next one. In the fourth one, Aunt Polly gave Tom what? An orange to eat?
A pear to eat? No. An apple to eat? Yes. Option number C. A mango to eat? No. So in the fourth one you will write C. Now moving to the question number C. Fill in the blanks with the correct word from the box. See, help box is given. Okay, and you have to take a help from that box and you have to fill it. Fine. So come to the fill in the blanks. Tom and his cousin blank were having a holiday. Who was his cousin? What was the name? It was Sid. So you will write here Sid. Okay, in the first one it will be Sid. In the second one, blank was carrying a bucket to fetch water from the water pump. Who was carrying a bucket to fetch water? Then it was Jim. So your answer will be here Jim. Okay. In the third one, a brilliant idea came to blank mind. किसके mind में idea आया था? It was Tom's mind. So here it will be Tom's mind. Okay. Okay. The fourth one, Tom was very blank at getting what he wanted. Tom was how he was? He was very clever. है ना? Then in the fourth one you will write clever. CLEVER, clever. Now in the fifth one, Aunt Polly was happy to see the fence looking so blank white. How was the fence looking? It was spotlessly. So here it will be SPOTLESSLY, spotlessly. In the fifth one it will be spotlessly. Done. Now move to the next question. Question number D. Answer the following questions. Again there is a question answer. Okay, let me show you the question answer. Alright, come to question number D. Answer the following questions. In the first one it is asking what task was given to Tom by Aunt Polly. ऐसा कौन सा टास्क था जो टॉम को दिया गया था आंट पोली के द्वारा? Then it was, your answer will be, Tom was given the task of whitewashing the fence by Aunt Polly. What was the task? To whitewash the fence. Okay. Now move to the next question. Question number 2. What clever idea came to Tom's mind? ऐसा कौन सा clever idea था जो टॉम्स के माइंड में आया था? Then your answer will be, the clever idea that came to Tom's mind was that he should pretend to enjoy his work. So this is the second answer. अगर आपको लिखना है then just pause the video pause कर लो आप and then write it in your notebook. Fine. Okay, now move to the third one. In question number 3, why was there a look of pity on Ben's face? जो बेन था उसके चेहरे पर क्यों ऐसा इंप्रेशन था, ऐसा एक्सप्रेशन क्यों दे रखा था उसने पीटी वाला, बड़ा ही मायूस वाला? ही वॉज सैड ना? देन योर आंसर विल बी, देयर वॉज अ लुक ऑफ पीटी ऑन बेन्स फेस बिकॉज he was going for a swim while Tom was working. So this is the third answer. Move to the next one. What did Tom get before the afternoon was over? जो दोपहर का समय ओवर होने से पहले टॉम को क्या क्या चीज़ें मिल जाती है उसके पास, वो किस किस चीज़ों का ओनर हो जाता है? Then your answer will be, Tom got 12 marbles. Tom got 12 marbles, a tin soldier, a key, a dog's collar, the handle of a knife, and 4 segments of an orange. So these were the things which were owned by Tom. Okay, this is the fourth one. And now moving to the fifth answer. All right, in the fifth one, why was Auntie Polly delighted? Then your answer will be, जो Aunt Polly थी वो क्यों खुश हो रखी थी लास्ट में? She was very much happy. What was the reason? Then your answer will be, Aunt Polly was delighted because the fence had been painted spotlessly white. So this is the fifth answer. Okay. Now there is given think and answer. In this question what you have to do, you have to just think and then you have to answer it. You have to do it by your own, but still I am doing it here. आपको ये खुद से करना था, but फिर भी मैंने यहाँ कर दिया है so that you can get the hint, you can get the help. Okay. In the question number A, how was Tom successful in getting others to do the work for him?
टॉम कैसे सक्सेसफुल होता था अपने अपने काम दूसरों से करवाने में, ऐसा वो क्या करता था, कैसे, मतलब हाउ डिड ही डू इट, वो कैसे ये कर लेता था. देन योर आंसर विल बी, कैसे उसने किया था इस चीज़ को सक्सेसफुल कैसे किया था, तो योर आंसर विल बी टॉम वॉज सक्सेसफुल इन गेटिंग अदर्स टू डू द वर्क फॉर हिम बिकॉज ही प्रिटेंडेड टू एन्जॉय द वर्क ही वॉज डूइंग. उसने ऐसा कैसे कर लिया था कि ताकि सारे लोग क्या कर रहे थे, उसके काम आके कर रहे थे ना. पहले बेन आया, उसके बाद फिर कुछ और भी फ्रेंड्स आ गए थे उसके काम करने को. तो ऐसा उसने क्या कैसे किया था. हेयर इज आस्किंग, ये जो प्लान थी उसको कैसे सक्सेसफुल हुई दूसरों से काम करवाने की. देन योर आंसर विल बी बिकॉज ही प्रिटेंडेड टू एन्जॉय द वर्क ही वॉज डूइंग. उसने कैसे प्रिटेंड किया, उसने ऐसा शो किया कि जो वो काम कर रहा है वो काम नहीं है, वो क्या है, इट्स जस्ट फॉर अ फन, है ना. और वो क्या कर रहा है, इन्जॉय कर रहा है. सो दिस वॉज द क्वेश्चन आंसर. नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन. वी हैव डन थिंक एंड आंसर. नाउ मूविंग टू द ग्रामर स्पॉटलाइट. सेंटेंसेस, दिस इज द ग्रामर पार्ट. ये जो सेंटेंसेस है बच्चे, इसके लिए मैंने वीडियो भी बना रखा है. सेंटेंसेस के वीडियो आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल पर, आप सर्च कर लोगे तो. ऐसे मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, ओके. और उसके आई बटन में मैं शो कर दूँगी. तो ऐसे मैं थोड़ा सा यहाँ पर हेल्प कर देती हूँ, आपको बता देती हूँ, थोड़ा समझा दूँगी, एक्सप्लेन कर दूँगी. मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बता सकती यहाँ पर, क्योंकि फिर ये वीडियो लंबा हो जाएगा. और मैंने ऑलरेडी बना रखा है इस पर वीडियो, एक अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसमें सेंटेंसेस बताया है, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस उसमें मैंने पढ़ाया. ये अलग वीडियो है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की, यू कैन चेक इट फ्रॉम देयर, ओके. सी sentences, what is the definition of sentence? A group of words that makes a complete sense, या फिर आप कह सकते हो a group of words which are arranged in a proper order and gives a complete meaning or complete sense is called sentence. ऐसे वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स के मिलने का जो ग्रुप है, वो अगर क्या होगा, वो एक प्रॉपर ऑर्डर में अगर अरेंज हो और क्या कर रहा हो, एक प्रॉपर मीनिंग दे रहा हो, मीनिंगफुल हो वो, देन दैट विल बी कॉल्ड एज सेंटेंस. अगर उससे मीनिंग नहीं निकल रही है, देन इट विल बी नॉट अ सेंटेंस, राइट, ओके. एंड चिल्ड्रन, a sentence must have a subject and predicate. Subject means what? The doer, the work which is done by someone. जो वो the work ऐसा पर्सन जो कोई काम कर रहा है, उस जो भी सेंटेंस कही गई उसमें कौन कर रहा है, हु इज द डूअर, दैट विल बी कॉल्ड एज सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल. फरहत मैम इज टीचिंग, देन हु इज टीचिंग हेयर, हु द डूअर हेयर, पढ़ाने का काम कौन कर रही है या कर रहा है, देन योर आंसर विल बी फरहत मैम ना. देन फरहत मैम विल बी योर सब्जेक्ट, ओके. इज टीचिंग, जो भी रिमेनिंग पार्ट है, दैट विल बी योर प्रेडिकेट. तो इज टीचिंग क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा प्रेडिकेट हो जाएगा. और प्रेडिकेट में हमें हमारे पास क्या होता है, वर्ब रहता है हमेशा, ठीक है. हमें उसमें वर्ब भी मिल जाते हैं, बट सब्जेक्ट में वर्ब मिलते नहीं, ओके. तो आपको ये समझ आ गई. अगेन देयर इज अ सब टॉपिक फ्रेजेस एंड क्लाउजेस. अब आप देखो फ्रेजेस किसे कहते हैं और क्लाउज किसे कहते हैं. फ्रेज, अ ग्रुप ऑफ 2 or more words which only conveys a partial meaning is called phrase. फ्रेज में क्या, सेंटेंस में तो क्या होता है कि बहुत सारे वर्ड्स होते हैं और वो क्या करते हैं, मीनिंगफुल होते हैं, मतलब पूरी मीनिंग देते हैं, फुल मीनिंग. बट फ्रेज में क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स रहेंगे बट इट विल गिव ओनली पार्शियल मीनिंग, मतलब हाफ मीनिंग मिलेगा आपको, ठीक है. उससे आप पूरी बातों को समझ नहीं सकोगे, बट हाँ समझने लायक है कि आप उतने में समझ जाओगे कि हाँ कहना क्या चाह रहा है, ओके. Unlike a sentence, it does not have a subject and a verb of its own. सब्जेक्ट के सेंटेंस की तरह इसके पास, फ्रेज के पास क्या नहीं होता, सब्जेक्ट भी नहीं होता, ना ही इसके वर्ब होते हैं, ओके. However, it makes a little more sense than a word. हाँ, लेकिन ये क्या करता है, थोड़ा सा कुछ मीनिंग देता है, कुछ सेंस देता है एक वर्ड के कंपैरिजन में. एक वर्ड बोलने से कुछ समझ नहीं आता, बट हाँ अगर फ्रेज बोल दिया जाए तो आप उसकी मीनिंग क्या कर सकते हो, कन्वे कर सकते हो, उसमें क्या उसमें कह रहा है आप वो समझ सकते हो, यू कैन अंडरस्टैंड इट. what is the clause? Then clause has a subject and a verb like a sentence, but it often begins with a conjunction which conveys a fairly good sense. Conjunction आपने पढ़ा है ना, and, but, because, these are the conjunctions. और तो ये सारे क्या होते हैं, conjunctions है. conjunctions के भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप चैनल पे ढूंढ सकते हो, you can search it on my channel and then you can watch it. तो जो clause होता है वो क्या होता है, वो conjunction से स्टार्ट होता है, ओके. इसका जो फर्स्ट बिगनिंग होगा वो किससे होगा, कंजंक्शन से होगा. और इसके पास सेंटेंस की तरह सब्जेक्ट भी होते हैं और क्या होते हैं, वर्ब भी होते हैं. बट डिफरेंस क्या है, इसमें कंजंक्शन से स्टार्ट होता है, ओके. एग्जाम्पल देख लो आप. ही इज़ सिक,
बट ही इज़ अटेंडिंग द डेली रिहर्सल्स फॉर द एनुअल डे। ये जो फर्स्ट में लिखा है ही इज सिक बट ये ही से लेकर फुल स्टॉप तक ये क्या कहला रहा है, सेंटेंस कहला रहा है। बट जो यहाँ से कॉमा के बाद लिखा है बट ही इज़ अटेंडिंग, जो यहाँ से है फ्रॉम हियर, दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर क्लाउज, ये आपका क्या है, क्लाउज है। अगर पूरे की बात की करेंगे देन इट विल बी योर सेंटेंस। फाइन। तो इस तरह से आप देखो सेकंड में क्या है, एंड से है, एंड शी टोल्ड हर मदर दैट शी वुड बी बैक होम बिफोर डिनर। तो ये हो गया आपका क्लाउज। देखो आप फर्स्ट वाले में क्या से शुरू हो रहा था, बट से हो रहा था, है ना। यहाँ क्या से शुरू हो रहा है आपका क्लाउज, एंड से, हेयर सो से। सो दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्लाउज। फाइन, ओके, ऑल राइट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। सी, exercises are given on the basis of this sentence, then phrase and clause. In question number A, write S against the group of words that is a sentence, PH against the group that is a phrase, and C against the group of words that is clause. Don't forget to start a sentence with a capital letter and end with a full stop. क्या करना है, आपके पास 4 क्वेश्चंस दे रखा है ए में, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सेंटेंस है। अगर वो सेंटेंस है देन यू विल राइट एस, अगर दैट इज़ योर फ्रेज देन यू विल यूज़ द लेटर्स पी एच, एंड इफ इट इज़ क्लाउज देन यू विल यूज़ द लेटर सी फॉर देम। ओके, देन लेट्स डू इट। इन द फर्स्ट वन, इन द स्काई, फर्स्ट में क्या कह रहा है, इसमें एक और चीज़ कह रहा है, अगर कोई सेंटेंस आपको आइडेंटिफाई कर लेते हो आप, अगर इसमें कोई सेंटेंस मिलता है आपको, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू स्टार्ट अ सेंटेंस विद अ कैपिटल लेटर। आपको उसका जो फर्स्ट लेटर है वो क्या करना है, आपको कैपिटल कर देना है, एंड यू हैव टू एंड इट विद अ फुल स्टॉप। अगर वहाँ फुल स्टॉप नहीं है देन यू हैव टू यूज़ देयर फुल स्टॉप। फाइन। सी द फर्स्ट वन, इन द स्काई, देयर आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट इट इज़ गिविंग पार्शियल मीनिंग, सो इट विल बी योर फ्रेज। फर्स्ट वन विल बी योर फ्रेज, तो यहाँ आप लिखोगे पी एच। In the second one, at first, again this is your phrase, group of words है और ये क्या दे रहा है आपको, partial meaning दे रहा है। थर्ड वन, boys play with blocks and battery operated toys, ये क्या है, this is the sentence because it is giving the complete meaning, but there is a condition कि यहाँ क्या लिख रखा था, अगर सेंटेंस आप आइडेंटिफाई करते हो तो उससे क्या करना है, यू हैव टू स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर। देन आप क्या करोगे, ये जो बी है उसका कैपिटल बनाओगे, स्मॉल बी को कैपिटल बी करोगे, एंड एट द लास्ट यू विल पुट अ फुल स्टॉप। ओके, देन इट विल बी बॉयज प्ले विथ ब्लॉक्स एंड बैटरी ऑपरेटेड टॉयज फुल स्टॉप, एंड हियर यू विल राइट एस बिकॉज ये सेंटेंस है। इन द फोर्थ वन, इन द वार्डरोब, दिस इज योर अगेन दिस इज योर फ्रेज। यहाँ क्लाउज तो हमें मिला ही नहीं, बस फ्रेज मिला और एक सेंटेंस मिला। फाइन, ओके। नाउ मूव टू द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। अब हमें काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ना है। कौन कौन सी पढ़नी है, डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव एंड एक्सक्लामेटरी। चिल्ड्रन, मैंने आपको पहले बता रखा है कि मैंने इस पर एक वीडियो अच्छे से पूरा एक्सप्लेन किया, इसमें पूरा डिटेल्स में पढ़ाया है, तो आप उस वीडियो को वॉच कर लो, देन यू विल बी एबल टू डू इट दिस क्वेश्चन। ऐसे मैं थोड़ा सा हिंट्स दे देती हूँ आपको। डिक्लेरेटिव मीन्स सिंपल सेंटेंस, स्टेटमेंट, ठीक है। एक सिंपल जो सेंटेंस होगा दैट विल बी कॉल्ड एज डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अगर सेंटेंस में कुछ क्वेश्चन की जा रही है, इफ देयर इज अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस देन दैट विल बी कॉल्ड एज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस किसे कहेंगे, इफ देयर विल बी रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, सजेशंस है ना, तो ये सारे क्या हो जाएंगे आपके, दैट विल बी योर इम्पेरेटिव सेंटेंस। अगर इफ देयर इज एक्सक्लामेशन मार्क इन द सेंटेंस देन वो आपका हो जाएगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। फाइन, जिसमें क्या होगा, आपके एक्सप्रेशन उसमें शो होते हैं, उसमें क्या यूज़ किया जाता है, इंटरजेक्शंस यूज़ किए जाते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में। गॉट इट, तो आप ये समझ जाओगे। हाँ, एक वन मोर थिंग, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन टैग्स, इसमें क्या डिफरेंस होता है, दोनों में क्वेश्चंस किए जा रहे हैं, बट जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसमें आप क्वेश्चंस का आंसर मांगते हो सामने वालों से जिससे आप बातें कर रहे हो, है ना, उससे आप कंप्लीट सेंटेंस में आंसर मांगोगे। बट क्वेश्चन टैग्स में क्या होता है, आप उससे बस कंफर्मेशन मांगते हो। फॉर एग्जाम्पल कि इट इज़ रेनिंग, इजंट इट, बारिश हो रही है ना, तो क्या करते हो, जैसे आप हिंदी में बोलते हो ना, बारिश हो रही है ना, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ योर क्वेश्चन टैग। ओके, इसमें क्या होता है, आप सामने वाले से कंफर्मेशन मांगते हो, सामने वाला बोलेगा हाँ या ना, जो भी बोलना है वो कंफर्म करेगा आपको। तो ऐसे ही फॉर एग्जांपल
आपको माई फादर इज़ हैप्पी, इज़न्ट ही, तो आपने यहाँ क्या बोला, इज़न्ट ही। यहाँ क्या आपका ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, इज़ है, सो यू विल यूज़ इज़। आर होगा तो आर यूज़ करोगे, विल होगा तो विल यूज़ करोगे आप, फाइन। सो दिस इज द डिफरेंस, गॉट इट। सी the question, there are two types of questions that can be asked. First, questions that begin with a WH word. This also includes the word how. Questions that begin with an auxiliary verb is, am, are, है ना। दो तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो है ना WH और हाउ लगाकर, जैसे कि व्हाट, वाई, वेयर, हाउ, ये सारे होते हैं। और एक क्या होता है कि एक ऑक्सिलरी वर्ब से पूछे जाते हैं, इज़ इट रेनिंग। अब जैसे किसी से पूछना है, इज़ इट रेनिंग, क्या ये बारिश हो रही है, तो ये क्या होगा, इससे आपने स्टार्ट किया, मतलब ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट करोगे आप, WH नहीं यूज़ करोगे आप। क्वेश्चन टैग्स क्या होता है, विच कम एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट्स आर नॉट लाइक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। दिस इज बिकॉज द पर्पज ऑफ यूजिंग अ क्वेश्चन टैग इज नॉट टू गेट एनी इन्फॉर्मेशन बट टू गेट द लिसनर्स कन्फर्मेशन अबाउट द स्पीकर्स स्टेटमेंट। एज आई विल टोल्ड यू, इसमें क्या होता है, यस यू वांट टू गेट द लिसनर्स कन्फर्मेशन, बस वो आपको कन्फर्म कर दे हाँ या ना में, है ना, अबाउट द स्पीकर्स स्टेटमेंट। जो आप बोल रहे हो, स्पीकर, हु इज़ स्पीकर है, द वन हु इज़ स्पीकिंग, राइट। तो अगर आप बोल रहे हो तो यू विल बी द स्पीकर, आपकी बातों को, आपके सेंटेंस को वो कंफर्म कर दे, दैट विल बी योर क्वेश्चन टैग, उसे ही कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इट्स अ लवली डे, इजंट इट। आज का जो दिन है बड़ा ही प्यारा है ना, है या नहीं, ऐसे बोलते हैं ना। यू हैव बीन टोल्ड अबाउट द मीटिंग, हैवेंट यू, तो ये आपका हैवेंट यू हो गया, लग गया, देन इट विल योर क्वेश्चन टैग। नाउ क्वेश्चन नंबर बी में आप आ जाओ। Now write the correct question tags for the given sentences to change them into questions. आपको प्रॉपर क्वेश्चन टैग्स यूज़ करना है, करेक्ट यूज़ करना है, ठीक है। यू आर द डॉटर ऑफ आवर स्कूल्स वाइस प्रिंसिपल, तो मैंने आपको बताया था ना, जो भी ऑक्सिलरी वर्ब दिया होगा सब्जेक्ट के बाद, यू विल यूज़ दैट वन ओनली। हियर इट इज़ गिवन आर, देन यू विल राइट हियर आर एंड यू। what will be here, it will be आर एंड यू in the first one. Wait, AREN apostrophe then T. It is a short form of what, are not. आपने शॉर्ट फॉर्म पढ़ा है, क्लास थर्ड में पढ़ा होगा आपने, फिफ्थ के बच्चे, आप क्लास थर्ड से तो होते ही आए हो, उसमें आपने क्लास थर्ड में शॉर्ट फॉर्म पढ़ा है, तो दिस इज योर शॉर्ट फॉर्म, आर नॉट का शॉर्ट फॉर्म आर एंड, ठीक है, आर एंड देन उसके बाद लिखोगे यू, आर एंड यू, देन क्वेश्चन मार्क तो लिखा है यहाँ पर, ठीक है, ब्लैंक के बाद इट विल बी आर एंड यू। इन द सेकेंड वन, शी हैड आइसक्रीम येस्टरडे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हैड एंड शी, HADN apostrophe T and then she. This is the short form of had not, hadn't. Okay. And the third one, it is pouring heavily. Then here it will be what? Isn't it? यहाँ is auxiliary verb, then you will write here isn't it. ठीक है, then question mark, ISN apostrophe T and it. Is it clear to you? Okay. My father has left for the airport. तो यहाँ क्या हो जाएगा, here it will be hasn't he. लास्ट में आप क्या करोगे, HASN apostrophe T and then he, hasn't he, then question mark ब्लैंक के बाद है, मेरे तो ब्लैंक के बाद मैंने लिखा, बाहर लिख दिया, इसलिए मैंने यूज़ कर दिया क्वेश्चन मार्क, ऐसे यहाँ दे रखा है। ओके ओके, ऑल राइट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अभी मैंने बता रखा है ये किससे स्टार्ट होते हैं आपके, इसमें आप इंटरजेक्शंस भी यूज़ कर सकते हो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, और नहीं भी यूज़ कर सकते, ऐसा नहीं कि कंपलसरी के इंटरजेक्शंस ही होंगे। ओके, इसमें क्या होगा कि आप जो भी बातें बोलोगे, आपको इसमें सडन एक्सप्रेशन शो होता है उसमें। आप वो एक्सप्रेशन कैसा होता है, सरप्राइज़ का हो सकता है, एंगर का हो सकता है, गुस्से का, या फिर सरप्राइज मतलब आप सरप्राइज हो जाते हो ना, आश्चर्य हो जाना, एक्साइटमेंट का हो सकता है, या फिर कोई और अदर स्ट्रॉन्ग इमोशन हो सकते हैं आपके, या फिर आपके दुख के हो सकते हैं, अलास, लाइक दिस, oh no, like this. Okay, so see in the question number C, unjumble the following words to form sentences with exclamation marks. आपको इन वर्ड्स को क्या करना है, अनजम्बल करना है, ठीक है, एंड देन यू हैव टू पुट द एक्सक्लेमेशन मार्क आल्सो एंड यू हैव टू फॉर्म एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सॉरी, फ्लावर्स व्हाट बुके लवली ऑफर, ये जो वर्ड्स है ना, अरेंज नहीं किए गए प्रॉपर में, आपको प्रॉपर अरेंज करना है, यू हैव टू मेक अ सेंटेंस, इट मीन्स व्हाट, इट शुड बी अरेंज इन अ प्रॉपर ऑर्डर, राइट।
देन ओनली इट कैन गिव अ मीनिंगफुल सेंस ना, तभी तो ये दे सकता है एक कंप्लीट मीनिंग। देन इसे अरेंज करने के बाद क्या बन जाएगा, व्हाट अ लवली बुके, व्हाट अ लवली बुके, व्हाट अ लवली बुके ऑफ फ्लावर्स। ओके, इट विल बी, मैं यहाँ लिख सकती हूँ, हेयर दिस पेज इज नॉट देयर, मैं आपको बोल दे रही हूँ, आप लिख लो। योर आंसर विल बी व्हाट अ लवली बुके ऑफ फ्लावर्स, देन एक्सक्लेमेटरी मार्क। ओके, एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ कर सकते हो अगर आप। एक्सक्लेमेशन मार्क अब देखो ये वाली रही, लेट मी शो यू, ये रहा आपको लाइक दिस, फाइन, ओके, ऑलराइट। इन द सेकेंड वन लिख दूँ क्या? अच्छा, मैं ट्राई करती हूँ, इतना स्पेस तो है नहीं वैसे। हेयर इट विल बी व्हाट अ लवली, मैं नीचे भी लिख दूँगी फिर उसे डिलीट करूँगी, ठीक है। अब लिखते जाओ, BOUQUE टी बुके ऑफ flowers, FLO, this is your L WERS, flowers, and then exclamation mark. Okay, what a lovely bouquet of flowers. Fine, first one done. अगर आप वीडियो आगे बढ़ता है, क्योंकि आगे ये हट जाएगा, तो आप इसे पीछे कर सकते हो आप। ओके, नाउ सेकंड का बनाती हूँ मैं। इन द सेकंड वन, गुड बर्थडे वॉज दैट केक सो, तो क्या आप लिखोगे, दैट बर्थडे केक वॉज सो गुड, इट विल बी दैट birthday cake was so good, and then exclamation mark. All right, okay. Now in the third one, यहाँ क्या होगा, made mess you what have a, तो यहाँ होगा what a mess you have made. It in the third one, what a mess you have made, then exclamation mark. All right, okay, now this one is done. Okay, now move to the fourth one, puppy is your cute so, तो आप क्या लिखोगे, it will be your puppy is so cute, your puppy is so cute, and then exclamation mark. Okay, right, okay. Now in the, मैं इसे डिलीट करती हूँ। now fifth one, surprise what pleasant, then here it will be what a pleasant surprise, what a, ये फिफ्थ का बना रही हूँ मैं, pleasant, are you able to see, नहीं, okay, let me do it again, what a PLEASANT pleasant surprise, SURPRISE surprise, what a pleasant surprise, then exclamation mark. Okay, this is the fifth one, आप लिख लो इसे पॉज करके, वीडियो पॉज कर लो आप। नाउ मूव टू द सिक्स्थ वन, सिक्स में क्या हो जाएगा, शी अ डन जॉब वंडरफुल हैव जॉब यू, देन योर आंसर विल बी she have done a wonderful, wait, in the sixth one some mistake is there, okay, so just leave it. Now move to the spell well. Question number A, fill in the missing letters to complete the words and learn the spellings well. You may refer to the words given in the box. There is a help box given for you, okay, you can take help from this box and just fill this, just write the missing letter. In the first one, what it will be, bucket, so here it will be BUCKET, bucket. Okay, second में क्या हो जाएगा, it will be holiday, HOLIDAY, this is your A. Okay, third one marble, then it will be AR, यहाँ L हो जाएगा. In the fourth one it will be what, in the fourth one it will be whitewash. Just wait, फोर्थ वन में आपका हो जाएगा ये वाइट वॉश, WHITEWASH,
WHITWASH, okay, whitewashed. In the fifth one it will be pretended, pretended, PR यहाँ E हो जाएगा, यहाँ E हो जाएगा, then again here to be EE, PRETEND, pretended. Done? Okay, all right. Now move to the word tower. Okay. In the group of words given below, one word is different in meaning. Cross the word out. Cross this word out. ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए गए उसमें क्या है, एक जो वर्ड है वो डिफरेंट है, आपको क्या करना है, उसे क्रॉस करना है. सो फटाफट कर ले हम, बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो रहा है. इन द फर्स्ट वन, ह्यूज, बिग, लार्ज, टाइनी. तो यहाँ क्या हो जाएगा, ह्यूज मतलब बड़ा, बिग मतलब बड़ा, लार्ज मतलब बड़ा, टाइनी ये इसका मतलब क्या हो रहा है, छोटा हो जा रहा है. तो दिस इज द ऑड वन. तो इसी तरह से आपको बाकी भी करना है, जो भी ऑड होगा उसे क्रॉस कर देनी है. फाइन, here it will be crossed. Second, gloomy, cheerful, happy and then joyful. तो यहाँ का gloomy हो जाएगा. थर्ड, tired, weary, exhausted and energetic. तो यहाँ पे energetic कर लोगे, सबका मीनिंग हो रहा है थकना, एंड देन here energetic means you don't get tired. तो ये अपोजिट हो जा रहा है. फोर्थ में एंगर, रेज, ग्रीड, रैथ, सबके मतलब हो रहे हैं गुस्सा, ठीक है, बट ग्रीड का मतलब हो रहा है लालच, सो इट विल बी क्रॉस्ड. फिफ्थ वन, ब्रिलियंट, एक्सीलेंट, सुपर्ब, शॉडी, सबका मतलब हो रहा है ब्रिलियंट अच्छा, बट शॉडी यहाँ आपका ऑड हो जा रहा है. सिक्स में डिसमे, सोरो, जॉय, डिसअपॉइंटमेंट. तो यहाँ जॉय हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब में आपका क्या हो रहा है, सैड वाला वो है. डिसअपॉइंट मतलब भी सैड हो जाना, सोरो मतलब भी सैड, जॉय मतलब खुश होना. दिस इज योर अपोजिट. So this is your odd one, so you will cross it. Okay, now activity is given which will be conducted in your classroom, so you will do it in your classroom. So that's all for today, and have a good day. Bye bye, take care. Bye bye bachcha.